آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اس نیوز کے پیش کرتا ہے کاسمک پیکسول، ایک بار جو کھائے یہاں بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ذکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کے متحدہ ضلع محبوب نگر کی مقامی خبرنامہ عکس محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ خبروں سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، مسلم شریف۔ فجر کی 2 رکعات سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ محمد عبدالہادی صاحب ایڈوکیٹ صدر مجلس اتحاد المسلمین ضلع محبوب نگر نے ملعون زمانہ وسیم رضوی کی قرآن شریف کی بعض آیتوں کو حذف کرنے کی شرپسندی پر مبنی درخواست کو خارج کرتے ہوئے 50,000 روپیوں کے جرمانہ عائد کر دیے جانے کی سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ملعون رضوی کا عمل جیل کی سزا کا بھی متقاضی تھا، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے عالمی سطح پر مسلمانوں میں پیدا غم و غصے کو راحت حاصل ہوئی۔ اور اسی طرح محمد محسن خان مسلم رابطہ کمیٹی صدر نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے ملک کے مسلمانوں میں جو بے چینی پائی گئی تھی اسے دور کرنے کا کام کیا ہے۔ ہمارے ملک بھارت کی عدلیہ کی جانب سے ملعون رضوی کی جانب سے قرآن شریف کی آیتوں کو حذف کرنے کی جو درخواست ڈالی گئی تھی، اس درخواست کو قبول کرنے سے انکار کا بہت سی مسلم تنظیمیں اور سیکولر احزاب نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا تھا، لیکن بہتر ہوا درخواست کو قبول کرتے ہوئے 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کی اس پٹیشن کو خارج کرتے ہوئے اس ملعون پر 50,000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ یقیناً قرآن شریف کی بے حرمتی کا معاملہ، آیت و حذف کرنے کا معاملہ صرف ہندوستان کی حد تک محدود نہیں تھا بلکہ عالمی مسئلہ تھا۔ اس پر اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ زیر ربر ہو جاتا تو عالمی سطح پر ہندوستان کی ساکھ متاثر ہوتی تھی۔ دیر سے ہی صحیح سپریم کورٹ نے صحیح فیصلہ دیا اور اس پٹیشن کو خارج کرتے ہوئے ملعون پر 50,000 جرمانہ عائد کر دیا۔ حالات تو اس بات کے متقاضی تھے کہ وہ اس کو جیل کی سزا دیتے تاکہ پھر کبھی کوئی اس قسم کی ہمت نہ کر سکے۔ جب بابر وحید کا فیصلہ آیا جس میں کہا گیا تھا تمام چاہت کے باوجود بھی عقیدے کی بنیاد پر جو مسجد کی جگہ کو جب غیر مسلمان کو دیا گیا، اس وقت بھی ہم کو اس بات کا یقین تھا کہ ہمارا بھی چونکہ قرآن شریف پر عقیدہ ہے، اس لیے سپریم کورٹ اسی بنیاد پر اس معاملے کو ریجیکٹ کرے گی، اس بات کا ہمیں یقین تھا۔ آج سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے ہمارے اس یقین کو اور مضبوط کر دیا۔ عدلیہ کے فیصلے پر بابر وحید کے بعد جو اعتماد ہمارا متزلزل ہوا تھا، وہ اعتماد آج اس فیصلے کے بعد ہمارا بحال ہوا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہندوستان کی عدلیہ کو کہ انہوں نے صحیح قدم اٹھایا اور آئندہ اس قسم کے کوئی کام نہ کر سکے۔ اسی طرح ہندوستان کے عدلیہ کو سومیٹو پیٹیشن کے ذریعے جو سیما ایک ملعون کی طرف سے، وسیم رضوی کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی گئی تھی جس میں قرآن شریف کی 26 آیتوں کو حذف کرنے کی بات کی گئی تھی، جس سے سارے عالم کے اور خاص طور پہ مسلمانوں کے، ہندوستان کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی تھی اور بہت غم و غصے میں تھے مسلمان۔ سارے ہندوستان میں احتجاج کیا گیا تھا اور سارے ہندوستان کے پولیس اسٹیشنوں میں اس ملعون کے خلاف شکایت درج کی گئی تھی۔ آج سپریم کورٹ نے اس ملعون کی پٹیشن کو رد کرتے ہوئے اس پر 50,000 کا جرمانہ لگایا ہے۔
आज बड़ी खुशी की बात है। हमें क़ानून पर, हिंदुस्तान के क़ानून पर भरोसा था और हमको उम्मीद थी कि जुर्माना और ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाएगा, लेकिन इतना ही काफ़ी है क्योंकि इस तरीके की हरकत कोई और ना कर सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट का ये जो कारनामा है इसकी हम तायद करते हैं और सबका ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। शहर महबूब नगर के मशहूर तालीमी और रिफाही इदारे दारुल उलूम खदुस सबील ट्रस्ट की जानिब से गुज़िश्ता की तरह इस साल भी महबूब नगर के मुख्तलिफ मोहल्लों के मुस्तहिक़ रोज़दार घरानों में राशन पैकेज की तक़सीम की जा रही है। मौलाना शाह मोहम्मद नईम कौसर रशादी साहब, सेक्रेटरी ट्रस्ट और जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला महबूब नगर ने बताया कि पैकेज 2 तरह के बनाए गए हैं। बड़ी फैमिली के लिए 4500 का पैकेज और छोटी फैमिली के लिए 3500 का पैकेज। मौलाना मोहम्मद नईम कौसर रशादी साहब ने पैकेज की तैयारी और तक़सीम में मुसलसल साथ देने वाले साथियुल मकरामों, हुफ़ाज़ साहिबान और दीगर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। ख़ास तौर पर सदर जमीयत उलमा मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला खान हुसामी, नायब सदर मौलाना मोहम्मद फ़खरुद्दीन रशादी, मौलाना मोहम्मद असरुद्दीन मुकर्रम रशादी, मौलाना मोहम्मद इरशादुल्लाह रशादी, मुफ्ती सैयद फ़हीम नदवी, सदर क़याम इंसानियत महबूब नगर और उनके साथियों का, और इसी तरह मौलाना मोहम्मद एजाज़ रशादी, मोहम्मद अब्दुल क़दीर साहब न्यूटन का नीज़ काम में मुस्तकिल साथ लगे हुए सबील ट्रस्ट के उलमा हुफ़ाज़ का भरपूर शुक्रिया अदा किया, जो कि पैकेज की तैयारी के साथ साथ घर घर पहुँचकर मुस्तहिक़ घरानों की खिदमत में खामोशी से राशन पहुँचा रहे हैं। ज़िला महबूब नगर मुस्तक़र के तेलंगाना चौराहे पर सीपीएम पार्टी की निगरानी में उगादी त्यौहार के मौके पर डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर सीपीएम कायद कुरुमूर्ति और चंद्रकांत ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से सर्वे नंबर 523 क्रिश्चियन पल्ली में 1500 अफराद की ज़मीन को तेलंगाना हुकूमत ने डबल बेडरूम फराहम करने का वादा करते हुए ज़मीन को हासिल किया था, लेकिन आज डबल बेडरूम मकानात तामीर होकर तैयार रहने के बावजूद मुस्तहिक़ अफराद में तक़सीम नहीं किया जा रहा है। इस मौके पर सीपीएम कायदीन ने मुतालबा किया कि मुकामी वज़ीर इस खुसूस में दिलचस्पी लेते हुए उगादी त्यौहार के मौके पर मुस्तहिक़ अफराद में डबल बेडरूम मकानात की तक़सीम को यकीनी बनाएं। इस मौके पर सीपीएम के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో గత 10 ఏళ్ల నుంచి పేదలకు ఇళ్ల స్థలాల కోసం పోరాటం చేసి సాధించుకున్నటువంటి 523 సర్వే నెంబర్లో క్రిస్టియన్ పల్లి దగ్గర సుమారు 1800 మంది పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చారు. అట్టి ఇళ్ల స్థలాలు మీరు ఒట్టి స్థలాలు తీసుకొని ఏం చేస్తారని చెప్పేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఆ స్థలాలను వాపసు తీసుకొని ఎవరి స్థలం అయితే వాపసు తీసుకున్న వాళ్ళందరికీ డబల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు నిర్మించిస్తామని చెప్పేసి చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసింది, ఇండ్లను పూర్తి చేసింది. కానీ ఈ యొక్క ఇండ్లను ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క పట్టాలు తీసుకుంటే లబ్ధిదారులకు నేటికి 3 సంవత్సరాలు ఇండ్లు పూర్తయి ఉన్నా అటు దివిటిపల్లి దగ్గర, ఇటు చుక్కన్ రాయి దగ్గర, అదే క్రిస్టియన్ పల్లి దగ్గర మొత్తం సుమారు 2000 చిల్లర ఇండ్లు నిర్మాణం చేసి కూడా ఇండ్లు కేటాయించకుండా
తాత్సారం చేస్తూ ఉన్న పరిస్థితి ఉంది. గత 3 సంవత్సరాలు నిర్మాణం పూర్తయిన ఇళ్లలో పందులు కుక్కలు సహవాసాలు చేస్తూ ఉన్న పరిస్థితి ఉంది. ఒకవైపు పర్రెలు నెరలిచ్చి ఆ ఇల్లంతా కూడా శిథిలావస్థలో ఉందా, ఇప్పుడు ఇస్తాం అప్పుడు ఇస్తాం, ఆ పండుగకి ఇస్తాం ఈ పండుగకి ఇస్తాం అని చెప్పేసి లబ్ధిదారులను ఇబ్బంది పెడతా ఉన్న పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఈ జిల్లా మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు స్పందించి రేపు ఉగాది రోజైన ఇండ్లను వెంటనే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లను లిస్టు ప్రకటించున్నారు. ఆల్రెడీ లిస్టు కూడా ఇచ్చి ఉన్నారు. మొన్న 2 నెలల క్రితమే ఒక 100 మందికి డిప్ కూడా తీస్తున్నారు. ఆ 100 మందితో పాటు మిగతా అందరికి కూడా ఎవరైతే అర్హులు ఉన్నారో ఎవరైతే లిస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ వెంటనే తక్షణమే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి సిపిఎంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. లేని పక్షంలో ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి తక్షణమే శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు స్పందించి మంత్రివారి గారు స్పందించి ఈ ఉగాది పండుగ రోజు ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు లబ్ధిదారులకు కేటాయించాలని సిపిఎం పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తాం. सैवरिन फाउंडेशन सदर कोदंडा पानी की 51वीं यौम पैदाइश के मौके पर सैवरिन फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने रेड क्रॉस सोसाइटी की निगरानी में खून अतिया कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में 25 अफराद ने खून अतिया दिया। इस मौके पर सैवरिन फाउंडेशन जिम्मेदारों ने कहा कि कोदंडा पानी समाज की भलाई के लिए कई एक फलाही काम अंजाम देते हैं। आज उनकी यौम पैदाइश की मुनासिबत से तलसीमिया से परेशान बच्चों के लिए खून अतिया दिया गया। సావరిన్ ఎస్టేట్స్ అండ్ మల్టీడేస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఎండి గారు డాక్టర్ బోగా కోదండపాణి గారి 51వ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు మా కంపెనీ తరఫున తలసేమియాతో బాధపడుతున్నటువంటి పిల్లలకు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో దాదాపుగా 25 మంది రక్తదానం చేయడం జరిగింది. రక్తదానం అనేటువంటిది మహాదానం. అయితే ఇందులో సామాజిక సేవలో భాగంగా మా యొక్క కోదండపాణి గారు ఎప్పుడు సమాజం గురించి సామాజిక సేవ గురించి మాట్లాడుతుంటారు, చేస్తుంటారు. అదేవిధంగా ఆయన బాటలో మేము నడుస్తూ మా వంతు సహాయంగా సమాజంలో తలసేమియాతో బాధపడుతున్నటువంటి పిల్లలకు ఈరోజు రక్తదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. जिला रंगारेड्डी के शहर शादनगर मुस्तकर पर मुकामी रियल एस्टेट ताजिर सैयद इब्राहिम की जानिब से अपने मरहूम फर्जंद के नाम पर बनाई गई फ़कीदुल मिसाल मस्जिद सैयद अब्दुल मलिक का बरोज़े इतवार बाद नमाज असर इफ्तिताह अंजाम पाया। ये मस्जिद जदीद तर्ज तामीर का उम्दा नमूना है। इस मस्जिद में मदरसे के अलावा एक जदीद इस्लामिक लाइब्रेरी भी कायम है। इस खूबसूरत मस्जिद का इफ्तिताह अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन मद्दज़िल्लाहुल आली के हाथों अमल में आया। आप इस मस्जिद में नमाज मगरिब की इमामत के ज़रिए मस्जिद का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस पुरअसर तकरीब में मुरब्बे मिल्लत हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही और दीगर उलमा ने भी शिरकत करते हुए अपने बसीरत अफरोज़ खिताबात से सरफराज किया। इनके अलावा मुकामी एमएलए अंजय यादव और दीगर सियासी कायदीन के अलावा शादनगर, महबूब नगर और हैदराबाद से आमतुल मुस्लिमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुतवल्ली मस्जिद सैयद इब्राहिम ने कहा कि ये मस्जिद सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि एक इस्लामी तहक़ीक़ी मरकज़ की शिफाखाना और मुसाफिरीन के लिए आराम और दूसरी ज़रूरियात का भी अहतमाम किया गया है। इस मस्जिद में मौजूद मदरसे में मुस्लिम नौनिहालों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाएगा। अलावा इसके इस मरकज़ से सारी रियासत में दावत दीन का भी काम भी अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने मस्जिद के इफ्तिताह में शिरकत करने वालों से इज़हार तशक्कुर भी किया। शादनगर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। मैं
मुसाफिर सफर से थके मारे आते हैं तो उनको कभी हाजिर की जरूरत होती है और कभी वो सुस्ताना चाहते हैं, कभी आराम करना चाहते हैं और कभी कुछ वक्त ऐसे गुजारना चाहते हैं जहाँ उनको नहाने की सहूलत हो और इबादत के साथ साथ आराम की। సయ్యద్ ఇబ్రాహిం గారు వాళ్ళ తండ్రి అయిన సయ్యద్ హుసేన్ గారు సంపాదించిన స్థలంలో తండ్రి జ్ఞాపకార్థమై తండ్రి పేరు మీద కొంత బీద ప్రజలకు సేవ చేస్తే వాళ్ళ తండ్రికి అల్లా దీవెనలు లభించాలని ఉద్దేశంతో ఇంత మంచి మస్జిదు, అదిగాక అన్ని కులస్తులైన వాళ్లకు లైబ్రరీ, ఆ లైబ్రరీలో ఉర్దూ కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ లెక్కలు కానీ నేర్పించే అదేవిధంగా వారము ఎవరికైనా బీద వ్యక్తులు చూపించుకోనికే, ఇలాజ్ చేయించుకోనికే ఒక హాస్పిటల్లో డాక్టర్ అపాయింట్ చేసుకొని ఇటువంటి మా పుణ్యకార్యాలు చేస్తే నిజంగా ఇబ్రాహిం గారిని కన్నా తల్లిదండ్రులు అదృష్టవంతులని నేను భావిస్తున్నాను. కాబట్టి ఇటువంటి కూడా పెద్దల జ్ఞాపకార్థమై ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేసినందుకు ఇబ్రాహిం గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. कोरोना की दूसरी लहर में जहां मुल्क में आए दिन कोरोना मामलात में इजाफा होते जा रहा है और इसी दौरान माह रमज़ानुल मुबारक की आमद भी है, इस खुसूस में जमात उलमा ज़िला विकाराबाद की जिद्दोजहद से कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनज़र रखते हुए मसाजिद कमेटियों और मसालिक के ज़िम्मेदारान से बातचीत और इत्तेफाक के बाद तांडुर और अतराफ व अकनाफ की तमाम मसाजिद में तरावी की नमाज में सवा पारा या 1.5 पारे का नज़्म रखा गया ताकि एहतियाती तदाबीर के तहत तरावी में भीड़ इकट्ठा ना हो। इस मौके पर जमात उलमा ने आवाम से अपील की कि वो रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक कोरोना ज़वाबित पर अमल करते हुए अपनी इबादतें अंजाम दें। तांडुर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। तकरीबन 1 साल से हमारा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया कोविड-19 के सिचुएशन से जूझ रही है। एक वेव ख़त्म हुआ था, हमें अब हमने कुछ सांस ली थी, लेकिन बहरहाल मुक़द्दरात हैं, दूसरा वेव शुरू हुआ है जिसकी वजह से पूरा मुल्क परेशान है। लेकिन रमज़ान चूँकि हमारे लिए सबसे मुक़द्दस महीना है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि वो अल्लाह ताला ने हमें फिर इनायत फ़रमाया है, वो आज या कल इंशाअल्लाह शुरू होगा। 1-2 बातें एहतियाती तौर पर तमाम हज़रात को अर्ज़ करनी थी। वो ये है कि एक तो रमज़ान शुरू हो रहा है जिसमें इबादतें हर मुसलमान को करना है। लॉकडाउन हुआ नहीं है अभी, लेकिन सब लोग तशवीश में हैं कि क्या होने वाला है। याद रखें, कुछ हो ना हो, हम अपनी इबादत के मुकल्लफ़ हैं। हम अब मस्जिदों में इबादतें करें, घरों में करें, इनफरादी करें, इबादत पर कोई रोक नहीं है। रहा मसला भीड़ भाड़ का, हुकूमत की तरफ से एक जियो आया है, उसमें यह कहा गया है कि लोग कहीं ज़्यादा जमा ना हो। अलबत्ता तजुर्बा ये है कि फ़र्ज़ नमाज़ों में जितने अहबाब होते हैं तरावी में उतने ही रहते हैं या आगे पीछे होते हैं। एहतियात इसमें करें कि हम क़वाइद जो कोविड के उसूल ज़वाबित आए हैं उसमें हम थोड़ा सा एहतियात कर लें और बक़िया तरावी इंशाअल्लाह मामूल से पढ़ें। दूसरी बात, तकरीबन उलमा और आवाम में से चंद अहल खैर हज़रात के मशवरे के बाद ये बात तय की गई थी कि जहाँ पर 3 पारे या 5 पारे होते हैं वहाँ पर कारोबारी लोग अपने कारोबारी मसरूफ़ियत की वजह से जल्दी तरावी या कुरान मुकम्मल कर लेने के लिए 10 दिन में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी जगह भीड़ ज़्यादा जमा होती है। इसलिए हमने मशवरा किया और सब मसाजिद जहाँ 3 पारे होते हैं सबको अलग अलग फ़ोन पर बात की है। जहाँ पर पुराने अब तक होते थे वहाँ पर बात की और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह हामी भरी और सब ने कहा कि इंशाअल्लाह जो मुनासिब होगा वो करेंगे। तो उलमा ने तकरीबन यहाँ पर जमीयत अहले हदीस और अहले सुन्नत वल जमात और तकरीबन तमाम उलमा से जो मुनासिब हो सका हमने मशवरा किया और अभी जो हाज़िर हो सके वो आ गए। उन तमाम के मशवरे से ये बात तय हुई है कि इस साल तांडुर में इंशाअल्लाह कम अज़ कम हम पूरे ज़िले में मशवरा किए हैं, इंशाअल्लाह 3 पारे नहीं होंगे तो इंशाअल्लाह 1.5 पारा सवा पारा जो मुनासिब होगा वो पढ़ लेंगे ताकि कुरान भी मुकम्मल हो जाए, तरावी भी मुकम्मल हो जाए। और एक बात जो आखिर में कहनी है तमाम आवाम से कि रमज़ान को इबादत का महीना बनाएं और इबादत के लिए हमेशा जमा होना कोई ज़रूरी नहीं है। और बक़िया अपने खाने पीने में, ख़रीदारी में और इसी तरीके से होटलिंग में थोड़ा सा एहतियात करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कुछ खाने पीने की या फ्री रहने की वजह से रमज़ान पर आँच आए या दीन पर आँच आए, मुसलमानों पर आँच आए। हमको अल्लाह के नबी ने तहम्मत की जगहों से बचने का भी हुक्म दिया है, इसीलिए इससे एहतियात कर लें। अल्लाह से दुआ
दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को रमज़ान की तमाम बरकतों से अल्लाह ताला हमको बहरवर फरमाए और हर मुसीबत और परेशानी से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आमीन। और हम तमाम मस्जिद कमेटियों से भी गुजारिश करते हैं कि तमाम उसूल और ज़वाबित का ख्याल कर तरावी इत्मीनान से सुकून से पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं कि यही मामूल बराबर चलता रहेगा। जरचल्ला बल्दिया के हाथे में वाक़ रघुवेंद्र स्वामी मंदिर और गौरी शंकर कॉलोनी का आज सुबह मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर सी लक्ष्मा रेड्डी ने दौरा करते हुए मुआयना किया और इस मौके पर कॉलोनी में निकासियाब ठीक ना होने की वजह से बल्दी ओहदेदारों को हिदायत दी कि निकासियाब के जदीद कामों का आगाज़ करें और मज़ीद कहा कि छोटे छोटे मसाइल की निशानदही करते हुए इसे फौरी हल करने की हिदायत दी। इस मौके पर रुकन असम्बली ने एक आबदार खाने का भी इफ्तिताह किया। बाद अज़ा बादेपल्ली के चंद्रा फंक्शन में TRS कारकुनों के एक इजलास में शिरकत की। जरचल्ले से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ अजमत अली की रिपोर्ट। जिला रंगारेड्डी शादनगर मुस्तकर में MLA कैंप दफ्तर में कुंदुर्ग मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 43 मुस्तहक़ अफराद में रुकन असम्बली अंजय यादव ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत चेकों को तकसीम किया। इस मौके पर अंजय यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीब और मुस्तहक़ लोगों की लड़कियों की शादियों के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ़ करवाते हुए माली मदद फराहम कर रही है, जो मुल्क के किसी भी रियासत में ऐसी स्कीम मौजूद नहीं है। ये तो सिर्फ तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की क़ायदाना सलाहियत का नतीजा है। कोरोना जैसे बहरान के दरमियान भी स्कीमात को जूं का तूत जारी रखे हुए हैं। शादनगर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। ओके నార్నా నియోజకవర్గంలోని 4 మండలాలు మహబూబ్నగర్, నందిగామ, కొందూరు, దేవరగూడ మండలంలోని ఎవరైతే వాళ్ళ అమ్మాయిలకు పెళ్లి వివాహం చేసినో షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఇంతకుముందు కొత్తూరు మండలం, కేసపేట మండలం కూడా చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈరోజు మొత్తం 229 మందికి 2,45,00,000 చిలుకు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఇవి బీద పేదలకు ఎంతో మేలైన విషయం. చాలామంది వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు చేసినప్పుడు కొద్దిగా బాగా తెచ్చుకుంటారు. పెళ్ళి ఖర్చుల నిమిత్తము ఇతరుల దగ్గర బాగా తీసుకుంటారు. ఇవి వచ్చిన ఇష్టమని కూడా వాళ్ళు। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में AG सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।